students. As you know that in previous lecture we discussed what are food groups. Now the next topic is balanced diet. Hope you understand the previous topic that is related with food groups. As you know that food is anything which is solid or liquid that we ingest, digest, metabolize and absorb inside our body. And you know that this food, it gives us energy which is important for the physiological functions of our body and other daily activities. And the food groups, there are various food groups that we discussed yesterday, and we should take all the food items from each and every food group, then only we can meet the daily requirement of a person. Now, what is balanced diet? As you know that balanced diet, it is a diet which contains foods from all the main food groups in the correct proportion to provide the body with optimum nutrition. बैलेंस डाइट होता है वो डाइट जिसमें सारे फूड्स होंगे हर एक ग्रुप में जो आपने कल देखी जितनी भी फूड ग्रुप्स है जब एक मेन्यू में हर एक फूड ग्रुप में एक एक फूड प्रेजेंट होगा तो उस इंडिविजुअल की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट ठीक है It should also be made up of correct number of calories to maintain a healthy weight and be low in processed foods. जो बैलेंस डाइट होता है इसमें हम रखते हैं करेक्ट नंबर ऑफ कैलोरीज ठीक है ना हमें कैलोरीज एक्सेस में लेना चाहिए ना डिफिशिएंट में बिकॉज अगर एक्सेस लेंगे तो ओवरवेट हो जाएगा डिफिशिएंट लेंगे तो डिजीज हो सकती है ठीक है सो वी शुड मेंटेन द correct number of nutrients or calories then we can maintain our body weight and this balanced diet it is low in the processed foods होते हैं जैसे जो पैक्ड फूड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं इनमें ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है कैलोरीज या फैट्स इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है दैट इज वाई बैलेंस्ड डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स नहीं आ जाते हैं Every person is different, so correct diet for health may vary from person to person, but it should cover all food groups and is low in undesirable nutrients such as sodium, saturated fats and sugar. As you know that there are individual differences. ठीक है as per the habit as per the region as per the likes and dislikes of the food as per the dietary habits ठीक है that is why every individual has different diet habits because हमारे likes और dislikes vary करते हैं dietary habits region availability of food so economic conditions so as per all these factors हमारा जो diet है वो vary करता है but हमारा जो main aim है diet का वो आपको ये रखना है कि एक इंसान के individual के diet में सारे foods होने चाहिए from all food groups then only उसकी जो भी nutritional requirements है वो उसकी fulfill हो जाएंगी बट जो डाइट हो चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल का हो चाहे वो नॉर्मल हो हॉस्पिटलाइज्ड हो डिजीज्ड इंडिविजुअल हो डिफरेंट रीजन का हो बट हमें ये मेन माइंड में रखना है कि दैट डाइट शुड बी लो इन सोडियम saturated fats and sugar because all these three things can harm our body ये हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं जैसे अगर सोडियम हमने ज्यादा लिया तो हाइपरटेंशन के चांसेस है सैचुरेटेड फैट्स तो सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं शुगर भी हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए अगर हम एक्सेस में लेंगे टूथ प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लड शुगर लेवल रेज हो सकती है सो दिस इज द बैलेंस्ड डाइट नाउ हाउ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट अचीव कैसे हम बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कर सकते हैं To achieve this objective, it is important to eat at least 5 to 6 meals a day and not skip breakfast.
आप बैलेंस्ड डाइट कैसे अचीव कर सकते हो? आपको स्मॉल एंड फ्रूकेट मील्स लेने, ये नहीं लार्ज बिग मील। जैसे कश्मीर में हमारा हैबिट है सिर्फ 3 मील्स हम लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बीच में इतनी गैप होती है, हमारी जो बॉडी है वो तब तक स्टार्व हो जाती है। सो उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसकी फुलफिल नहीं उस टाइम तक हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन डिटोरेट हो जाता है। सो बैलेंस्ड डाइट हम मेंटेन कर सकते हैं। यू शुड टेक fruit and small meals, at least 5 to 6 meals, and हमें कोई भी ब्रेकफास्ट, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। Each meal should be composed of variety of foods from each food group, and portion sizes should be moderated to control calorie intake. जैसे मैंने आपको पहले कहा, चाहे आप ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, मिड इवनिंग, डिनर या लेट इवनिंग जो है, जो भी आप मील लेंगे उसमें आपको हर एक फूड आइटम होना चाहिए हर एक फूड ग्रुप में। और पोर्शन साइज इस मीन्स क्वांटिटी जो है उसको आपको कंट्रोल करना है, तब जाके आप कैलोरी इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बैलेंस्ड डाइट है इसमें हमें लिमिट रखना है अल्कोहल कंजप्शन, बट एज पर यूएस गाइडलाइंस 1 standard drink per day for women and 2 for men with 2 alcohol free days per week। अब जैसे आउटसाइडर्स है जो जिनमें अल्कोहल कंजप्शन बहुत इन है, तो एज पर गाइडलाइन जो यूएस वो ले सकते, इट इज सेफ फॉर वुमेन। वुमेन 1 standard drink वो कंज्यूम कर सकते हैं पर वीक, या 2 फॉर मैन जो इनटेक कंजप्ट करते हैं। अदरवाइज इट इज लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शन इन आवर डाइट। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स बाय विच यू कैन अचीव द हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या है हेल्दी बैलेंस्ड डाइट में, इसमें क्या क्या होना चाहिए? Dairy, high in saturated fats, so to reduce fat and calories, it is best to choose low fat or fat free varieties. Important for calcium, protein, vitamin D. 3 cups of reduced fat dairy per day. Dairy products या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है ये सैचुरेटेड फैट्स में हाई होते हैं, सो टू रिड्यूस फैट एंड कैलोरीज। हमें ये इसलिए लेना चाहिए डेयरी बिकॉज इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन होता है। 3 कप्स हमें लेना चाहिए पर डे डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोटीन हमें पर डे 5 to 6 ounces एज पर एज एंड सेक्स। 1 ounce इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ मीट, पोल्ट्री, पोर्क और फिश। जैसे आप मीट 1 पीस लेंगे, शाम को आप फिश या चिकन ले सकते हैं। या 1 ounce ऑफ 1/4 कप कुकड बीन्स, या एक एग, 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर और हाफ आउंस ऑफ नट्स और सीड्स। इट मीन्स कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में एग लिया, बेड टी टाइम के पास आपने मिल्क लिया, ठीक है, मीट आपने लंच में रखा, शाम को आपने या पल्स रखा, उससे भी आपको प्रोटीन मिल। तो हर एक मेन्यू में आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फ्रूट्स 2 cups, दैट इज 4 serving, ठीक है, पर डे। ठीक है, फ्रूट्स भी आपके इसमें होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी, ग्रेन्स भी 2.5 cups वेजिटेबल्स वो होती है 5 servings पर डे। इट मीन्स आप उसको 5 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पर डे 2.5 कप वेजिटेबल्स कंज्यूम करना है, सो आप वेजिटेबल ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी, इवनिंग टाइम में भी और डिनर में भी। ठीक है, ग्रेन्स 3 ounce और मोर पर डे। फैट्स एंड ऑयल्स हमें 20 to 35% जो हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है उसमें से 20 to 35% एनर्जी जो है वो हमें फैट से मिलनी चाहिए। ठीक है, सो उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज फैट्स एंड ऑयल्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से फिर हमारी लिपिड लेवल जो बैड लिपिड लेवल्स है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या एलडीएल है, वो रेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, एंड फैट्स एंड ऑयल्स स्पेशली आपको कंज्यूम करना चाहिए पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो प्लांट सोर्स से आपको मिल जाता है। एनिमल सोर्स ऑफ फूड से आपको फैट अवॉइड करना चाहिए, जैसे बटर है, घी है, उनको आपको लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। बिकॉज जो सैचुरेटेड फैट्स है वो एनिमल सोर्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बैड लिपिड लेवल
रेज हो जाती है एज नॉर्मल, जो लेवल हमारी बॉडी में होती है उससे वो रेज हो जाते हैं जब हम फैट्स या ऑयल्स फ्रॉम एनिमल सोर्स से कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से फिर हार्ट पे भी प्रॉब्लम इफेक्ट पड़ जाता है, हार्ट की आर्टरीज पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, लिवर प्रॉब्लम्स होती है या ओबेसिटी हो जाती है फिर, ठीक है। सो इट इज बेटर टू टेक फैट्स एंड ऑयल्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज ऑफ द फूड एज दे आर रिच इन द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बेनिफिट्स क्या है बैलेंस्ड डाइट के? बिकॉज इससे आपको सारी न्यूट्रिएंट्स फिल हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो मीन्स इनकी डिमांड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड यू नो, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट फैट और प्रोटीन जो है इनको अपना फंक्शन भी है, जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स वी नीड देम इन स्मॉलर अमाउंट। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है। फैसिलिटेट्स हाइड्रेशन, जो बैलेंस डाइट आप जब कंज्यूम करते हैं इसकी वजह से आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड एक्सक्रिएट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, in the form of stool, in the form of urine. So we have to maintain this fluid balance. So जब आप बैलेंस डाइट लेंगे उसकी वजह से आपकी बॉडी हाइड्रेट भी हो जाती है। जो फ्लूइड्स है, इट शुड बी लिबरल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, सो 6 to 8 glasses ऑफ वाटर पर डे। बैलेंस डाइट में आपके वो फ्लूइड भी आता है, इट मीन 6 to 8 glasses आपको फ्लूइड लेना चाहिए, सो दैट वी कैन मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रो बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। फ्लूइड्स नॉट ओनली कंटेन वाटर बट बेवरेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्लूइड्स में आपको सिर्फ वाटर नहीं, सिंपल वाटर आता है, इसमें आपको जूस भी आ जाता है, अगर आप वेजिटेबल सूप लेंगे वो भी आ जाता है, मीट सूप लेते हैं वो भी आ जाती है। बेवरेज जैसे कॉफी, टी है, वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। वाटर डज नॉट कंटेन एम्प्टी कैलोरीज और कैफीन, बट जो सिंपल वाटर है उसमें ना कैलोरीज प्रेजेंट होती है ना कैफीन। जो बैलेंस्ड डाइट है वो आपको डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट करता है, बिकॉज बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज व्हाई इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। It induces peaceful sleep. It means when you are taking the well balanced diet, जो insomnia होता है, lack of sleep, उसको आप prevent कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी sound sleep हो जाती है। Better and happier lifestyle. It means through balanced diet you will spend your life in a happy way and the life will be better, ठीक है। बिकॉज जो फूड है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हेल्थ। व्हेन यू आर टेकिंग द डाइट इन a good way, when your diet or when your menu contains all the essential nutrients like protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, so when all these nutrients are present in your diet, your जो body weight है is maintained. You are able to perform the daily activities. You are able to perform the various physiological functions. You are mentally alert, mentally fit, physically fit, socially fit. That is why food is very important, especially balanced diet, because it maintains your body weight, it performs your vital functions, it helps to maintain the sound sleep. It helps us to live better and happier life. So this was all about the balanced diet. Dear students, hope you understand this topic in a better way. Thank you so much for today's lecture.